नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो कैप्टन तानिया से रिलेट करती है। सोचा स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है व्हाई डिड कैप्टन तानिया Shergill join Fauj? Captain Tanya Shergill created history by becoming the first woman to lead a 146 all-men contingent on 26 January 2020 during the Republic Day parade and saluted the President of India, Ram Nath Kovind, on her command. But who is she and why did she join Fauj? I opted for Fauj. It is something I always wanted to do since I was a little girl. Tanya Shergill is an Indian Army officer from Hoshiarpur, Punjab, who comes from a long line of Indian Army officers. We do it because it's our job, it's our duty to be truthful to the uniform we are wearing. Her father, Surat Singh Gill, served the 101 Medium Regiment and later in CRPF where he won a PPMG. My father also passed out from Officers Training Academy, Chennai. So definitely when he came out for my passing out, he was very sentimental because he was seeing it all over again. Ever since I was a little girl, I used to see my father wearing the uniform. So I always had it in the back of my mind that one day I want to earn the uniform myself. Shergill's grandfather served in the 14th Armed Regiment. Her great-grandfather was in the 6th Regiment. That makes her a 4th generation army officer. सलामी मंच के निकट आ रहा है कोड ऑफ सिग्नल्स का दस्ता। नेतृत्व इंडियन आर्मी की 4th जनरेशन ऑफिसर कैप्टन तान्या शेरगिल कर रही है। She has a BTech in Electronics and Communications from Nagpur University and had applied to the Officers Training Academy (OTA) during the last year of her engineering. In the final year, I applied for the army and I got through. In the final year of my college, I had got placed in TCS, but I never joined the company because I wanted to join Fauj. Having received the training from Officers Training Academy, Chennai, she was commissioned in the Corps of Signals in 2017. When it comes to training, it's rigorous and it is required to make officers out of normal people. That type of training is required. When asked about what does leading of the contingent symbolize for you, for the army or for the country, hear what she has to say. If your regiment has chosen you to lead your contingent, it gives you a sense of responsibility. You're grateful for the opportunity and you feel when you get down on the ground, you should give your best because your men should trust you, you should trust your men. You feel blessed, you feel grateful, and you feel grounded and worthy at the same time. This uniform means a lot to me because when you earn it, there is so much that Fauj has given me. So anything that I can do for my Naam Namak Nishan is all that means. I think our generation has this privilege of joining Fauj as a woman officer. So I just went for it. You're never really nervous because you work really hard. People only see one day. It's either Army Day Parade or Republic Day Parade. What they don't realize is that we have been practicing since months. So when it comes down to the D-Day, we have already practiced so much that we are men. We have that confidence कि हाँ यार, जो step करना है, करो या मरो. Once you get down on the ground, so there's a saying called "Kar har Maidan Fateh." So when you get down on the ground, you just absolutely you have to give your mind on parade. You have to be present. And my final thoughts was that this is the last day I'm going to do Army Day Parade because obviously you do it only once. You don't do it every year. So it was like यार last time करना है, जोश टाइप करना है. She is truly inspirational and it's a feeling of pride when we see women like her in the Indian Army. Subscribe to our YouTube channel and hit जी जनाब। क्या बात है, वाकई एक मैं बोलूँगी एक इंस्पिरेशन है। देखें, मर्द हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, वतन की मोहब्बत हर किसी के अंदर होती है। कुछ लोगों के अंदर वो मोहब्बत इतनी परवान चढ़ती है, मतलब वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो कहते हैं बस कुछ करके दिखाएं अपने वतन के लिए, अपने कंट्री के लिए। और आर्मी का जो एक वो है ना, मतलब क्या कहते हैं, अपना वर्दी, उसका एक अलग क्रेज़ है, उसका एक अलग चार्म है। और किसी के दिल में, दिमाग में अगर बचपन में ये बैठ जाता है अपने काम को लेके और आर्मी को लेके, उन्होंने फिर वो करना ही। फादर भी मेरे ख्याल में आर्मी में थे शायद। जी हाँ। तो उन्होंने फादर को जब जनरेशन थी। अच्छा, वो कंटिन्यू आर्मी से रिलेटेड। तो आप खुद बताएं,
मेरे घर में अगर मेरे फादर हों, मेरे ग्रैंडफादर हों, तो मुझे तो वैसे ही मेरे अंदर कितना जोश होगा बचपन से। मैं अपने आप को प्रिपेयर्ड करूँगी उसी चीज़ के लिए कि मुझे भी वही करना है। सही। अच्छा, एक चीज़ नोट की थी, इनकी हाइट कितनी ज़बरदस्त, यानी कि इनके बराबर में सामने जो मर्द थे वो छोटे लग रहे थे। कॉमन ऐसा होता नहीं है कि ज़्यादातर मर्द की हाइट ही ज़्यादा होती है, लेकिन इनके बराबर में जो मर्द खड़े हुए थे वो छोटे लग रहे थे अक्सर। हाइट इनकी अच्छी, और फिर मतलब है कि अपने काम को लेके, अपने पैशन को लेके फिर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। पैशनेट हैं, और इसके अलावा कहती हैं हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा करिए। हार्ड वर्किंग तो किसी भी फील्ड को और लेके। इसके अलावा बता रही हैं कि उनको जॉब ऑफर हुई थी, सही, बट उन्होंने मना कर दिया ये सोच के कि मुझे आर्मी ही में जाना है। कमाल है। और परेड जिस तरीके से परेड होती है, जोश के साथ, एक जज्बे के साथ, बलबले के साथ, तो वो तो उसकी तो बात ही अलग है। बिल्कुल, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बता रही हैं। बिल्कुल। लेकिन ये है ना कि इस काम में ये एक तो जॉब होती है, लेकिन ये ऐसी जॉब है कि जिसमें आप बड़ा अपने आप को फील महसूस करते हो, खुशी महसूस करते हो कि यार मैं अपने मुल्क की आर्मी का हिस्सा हूँ, और मैं अपनी, अगर मैं कुछ, वो ये कह रही है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने मुल्क के लिए। तो ये जज्बा बड़ा, मतलब मैं ये कहूँगी बहुत प्राइसलेस होता है, बहुत कीमती होता है कि आपको मौका मिले कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ कर पाओ। बहुत बड़ी बात है, समझी जाए तो। और ख़ास तौर पे वुमेन, ख़ास तौर पे देखो, मर्द तो मर्द होता है, चलो ठीक है, लेकिन फ़ीमेल अगर इस मैदान में आती हैं तो मैं कहता हूँ ये इनको और ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, और मतलब बाकी, और इनको देख के कई लड़कियां ऐसी होती हैं ना कि वो सोचती हैं हम तो लड़कियां हैं, आर्मी का तस्वुर भी, आर्मी के बारे में नहीं सोचती। मतलब एक होता है ना, फ्यूचर पूछा जाता है आप बड़े होके क्या करोगी बेटा, मैं तो डॉक्टर बनूंगी, मैं तो ये बनूंगी, मतलब कॉमन लड़कियों में ज़्यादातर नॉर्मल ये होता है। तो मैं कहता हूँ इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको तो इतना हाईलाइट मीडिया में होना चाहिए, सोशल मीडिया में होना चाहिए। हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, वीडियो बनाने वाले हैं, ब्लॉगर्स हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं जो, तो उनको इस तरह के लोगों को थोड़ा सा करना चाहिए ताकि आम, हाँ, तो लोगों तक ये बात पहुंचती है, तो फिर उससे औरों को भी पता चले अच्छा ये भी हो सकता है। अच्छा, एक मूवी है इंडिया की, आपको पता है चाइना में वो, उस मूवी ने इतने धमाके किए, इतना मैदान मारे कि मत पूछें, बहुत बड़े बिजनेस किया उसने चाइना में उस मूवी ने। और वो मूवी इंडिया की बहुत बेहतरीन मूवी है और इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। आप उसको देखोगे आप रो पड़ोगी। कौन सी? दंगल। दो लड़के, आमिर खान, जो पहलवान होते हैं। मैं कहता हूँ कि ये कि लड़कियाँ उसके ज़हन में था कि मेरे तो बेटे नहीं हुए तो मैं पहलवान नहीं बनेंगे, मेरी तो बेटियाँ हैं। फिर उसके ख्याल आता है कि हाँ भाई इनको ट्रेन करें। गांव में बड़ा मसले मसाइल हुए यार, क्या चीज़ बना दी, यकीन करें। बहुत गहरी, बहुत इमोशनल, छोटी छोटी बातें गांव देहात वाले बोल रहे हैं, लड़कों से लड़वाया बेटियों को। पूरी फिल्म देखी, प्रैक्टिस करी, पूरी मूवी देखी है वैसे थोड़ी, थोड़ा, लेकिन ये मूवी जो है मैं कहता हूँ सुकून से टाइम निकाल के आप देखें तो आप मज़ा आ जाएगा। लेकिन मैंने सुना था काफ़ी इमोशनल है, बहुत ज़बरदस्त। उसमें दो लड़कियाँ थी, हेयर्स बिल्कुल शॉर्ट करवा लिए थे, लेकिन बड़ी मतलब एक बाप की बेटियों से, ओ हो कमाल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।